বিধানসভা নির্বাচন শেষ, রাজ্য রাজনীতি উথালপাথাল। উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া বিধানসভায় তিনটি মুখ্য দল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করার পর শেষমেশ তৃণমূল কংগ্রেসের বাজিমাত। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তৃতীয় স্থানে জাতীয় কংগ্রেস। তৃতীয় নম্বরে থাকা সত্ত্বেও বারবার রাজনীতির ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেসকে বরাবরই চ্যালেঞ্জ করে আসছে এই দল, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। ভিক্টরের অভিযোগ, নির্বাচন চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের 4 তারিখের পর দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তবে এবার চাকুলিয়া বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস জিতলেও রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের আর সরকার নেই, হাতে নেই কোনো পুলিশ প্রশাসন। তাই প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ভিক্টর মনে করছেন এবার খেলাটা জমবে। তার মতে, এতদিন তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশের ভয় দেখিয়ে কংগ্রেসের কর্মীদের হেনস্থা করেছেন, কিন্তু এখন আর কারো নয় পুলিশ। তাই এবার খেলাটা সরাসরি হবে খেলার ময়দানে। রাজ্যে এখন বিজেপির সরকার, তাই বিরোধী দল হিসাবে রাজ্যের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করা বিরোধী দলের কর্তব্য। তবে বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেস এখনও ভবিষ্যতে কোন পথে চলবে তা এখনও পর্যালোচনা চলছে, জানিয়েছেন আলী ইমরান রমজ ভিক্টর। মে মাসের 10 তারিখ 2026-এ কংগ্রেসের এই কর্মী সভা নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে আয়োজিত হলো চাকুলিয়ার কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে। ঠিক কী কারণে কংগ্রেস এই নির্বাচনে হেরেছেন এ নিয়ে তাদের বক্তব্য পরিষ্কার। এই মেরুকরণের নির্বাচন হওয়ার কারণে যারা নিরপেক্ষ রাজনীতি করে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তবে বুথ স্তর পর্যন্ত নিজেদের খামতিগুলি দূর করে আবার পরবর্তীতে ঘুরে দাঁড়াবে কংগ্রেস। ভিক্টরের দাবি, তিনি যতবারই হেরে যাক না কেন তিনি থেমে থাকবেন না। মুখ্যমন্ত্রী খাল কেটে কুমির ডেকেছেন, আর সেই কুমির এখন ওনাকে কামড়াবে, তো এখন বাঁচাবার জন্যে এখন সব দলকে ডাকছেন। যে খাল কেটে কুমির নিয়ে এসছে সেই কুমিরের কামড় আগে খান উনি, তারপরে আমরা চিন্তা ভাবনা করব। এই যে সংগঠন, আপনার সংগঠন নিয়ে কি বলবেন? আজকে যে সংগঠন কি বার্তা দিলেন? আজকে একটাই বার্তা, কি আমাদের যে সকল বুথ থেকে নিয়ে অঞ্চল এবং চাকুলিয়া ব্লকের যারা আমাদের নেতা কর্মী সমর্থকরা যেভাবে নির্বাচনে আমাদের লড়াই করেছে, গ্রামে গ্রামে মানুষের কাছে গিয়ে ভোট প্রচার করেছে, তাদের লড়াইয়ের কারণেই আজকে আমরা যে ভোট সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেই ভোটটা ওনাদের জন্যই আমরা পেয়েছি। সেইখানে আমরা আজকে আমাদের আত্মসমালোচনা করার জন্যে এই মিটিং ডাকা হয়েছে, রিভিউ মিটিং। সেখানে আমাদের কর্মীরা তাদের বক্তব্য রেখেছে, আর তাদেরকে যাতে আগামী দিনের জন্যে তারা প্রস্তুত হতে পারে। তাদের মন ভেঙে গেছে, অনেকেও খেটেছে, তারা ভাবছে কি আমরা হেরে গেলাম। তো ভাই, আমাদের তরফ থেকে আমরা এটাই বার্তা দিয়েছি কি আমরা নির্বাচন হারতে পারি, কিন্তু আমরা হারিয়ে যাইনি, আমরা ছিলাম, আছি এবং থাকব। उम्मीद से अपोजिट आपका रिजल्ट आया है, आगे की रणनीति क्या होगी और आज की इस सभा का क्या उद्देश्य होगा? नहीं, अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया है, ये रिज़ल्ट आम आवाम भी नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ पर है कि इतना ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा है कि बंगाल में जो एक सेकुलर स्टेट का मिसाल कायम किया करता था, आज वो स्टेट हिंदू मुसलमान में बढ़ चुका है। आज वोट हिंदू बीजेपी में जा रहा है, मुसलमान अपना वोट ममता को देख के दे रहा है। तो यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान के बीच में हम लोगों की सेकुलर पार्टी की ये परेशानी आ गई है कि आज हम मुसलमान के पास मुसलमान भी नहीं हैं और हिंदू के पास हम हिंदू भी नहीं हैं। आज हम अपने आप को हिंदू मुसलमान के बीच में कहीं ना कहीं हम खुद को ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये हालत हो जा रहा है। सेकुलर माइंडेड जो लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के बच्चों के तालीम के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए, पढ़े लिखों के नौकरी के लिए, माँ बहनों की हिफाजत के लिए ये सोचते हैं, किसानों के लिए सोचते हैं, उन लोगों का वोट हमारे साथ है। लेकिन ये वोट से हम जीत नहीं सके, लेकिन ये हार को हम तस्लीम करते हैं, आवाम के फ़ैसले को हम तस्लीम करते हैं, और आने वाले वक्त में जो लड़ाई है उस लड़ाई का सामना करने के लिए हम और हमारी पूरी पार्टी हम लोग तैयारी
में लग जाएगी। इस बार बंगाल के इलेक्शन चुनाव में ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ी थी, जैसे अगर और दूसरी पार्टी का देखा जाए तो क्या पार्टी का जो रणनीति थी कहीं कमज़ोर नहीं नजर आई है आप लोगों के हिसाब से? नहीं, पार्टी की पॉलिसीज़ में भी कुछ खामियां हैं, उससे हम इनकार नहीं करते हैं कि पार्टी को जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए थी स्टेट लेवल पर, वो स्टेट लेवल पे तैयारी नहीं। फैसला 294 सीट में लड़ने का लिया, तो उसके लिए 294 सीट पे लड़ने से पहले पार्टी को अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करना चाहिए था। कैंडिडेट सिलेक्शन में काफ़ी देरी हुई और कैंडिडेट तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर हम अपना जो वोट है उसको सिक्योर भी नहीं कर पाए कि कम से कम हम अपनी ज़मानत बचा सकें। मैक्सिमम सीट में हम अपनी ज़मानत नहीं बचा पाए हैं। यहाँ तक कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब मोहित साहब, उनको 4000 वोट मिला है और उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिया है, कांग्रेस के लोगों को टिकट नहीं दिया। उसमें अपने लोगों को टिकट देकर कहीं पर हमको 2700 वोट मिलता है, कहीं 2900, कहीं 1100। ये जो हालत है, तो इससे संगठन को नुकसान होगा। जिस तरह से लोकसभा में आपको वोट मिला था, कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था, उस लिहाज से देखा जाए विधानसभा चुनाव में एक कांग्रेस की एक बुरी हालत नजर आ रही है सर, इसको क्या? नहीं, कांग्रेस की हालत चाकुलिया की सरजमीन पर बुरी नहीं है। चाकुलिया में कांग्रेस आज भी इतनी मजबूत है कि अपनी लड़ाई लड़ सकती है। उत्तर दिनाजपुर जिला में आज कांग्रेस अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर मजबूत है तो वो चाकुलिया में है। तो इसलिए कांग्रेस कमज़ोर नहीं। लोकसभा का चुनाव का नज़रिया लोगों का अलग था और विधानसभा में लोगों का चुनाव का नज़रिया अलग था। उस टाइम लड़ाई बीजेपी से थी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट हुआ, तो वहाँ पर उन लोगों ने मुझे सोचा कि दिल्ली में ये जाके लड़ेगा, इसलिए वोट यहाँ कुछ लोगों ने ज़्यादा वोट दिया। और आज ममता के खिलाफ लड़ाई थी, तो ममता की सरकार को बचाने के लिए लोगों ने मुझे कम वोट किया है। सर देखा जाए आने वाले दिनों में आपको दो ऐसी पार्टी से लड़ना है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, बीजेपी हो। अब दो ऐसी शक्तियों से आपको लड़ाई है कांग्रेस की। देखिए, तीनों ममता ने जो आवाज़ दिया एक साथ होने का, उस पर आपकी क्या? नहीं, वो तो अभी दूर की बात है कि मरता क्या नहीं करता। जो ममता बनर्जी 26 के चुनाव से पहले बोल रही थी कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, इंडिया अलायंस को नहीं मान रही थी, राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मान रही थी, और आज वो अपनी जान बचाने के लिए राहुल गांधी उनका नेता है, अभी सारे पार्टियों को एक होने का दावत दे रही हैं। तो ये जो है अपने मुसीबत के वक्त में बचने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। वही जो बंगला में कहते हैं, खाल केटे कुमिर डेकेছেন, এখন কুমির থেকে বাঁচতে সবাইকে ডাকছেন। तो वो उस अलग चीज़ है, वो अपना रोना रोते रहे, लेकिन उससे मतलब मसला यहाँ है कि हमारी लड़ाई जो है कल जिस तरह से थी, आज वही लड़ाई हम लोग बीजेपी के खिलाफ भी लड़ेंगे। और रहा सवाल टीएमसी से लड़ने का, तो टीएमसी अपना वजूद बचा ले आने वाले वक्त में, यही बहुत है। क्योंकि जो ममता बनर्जी ने जो नारा दिया था कि वो बंगाल के सारे सेकुलर पार्टी को साइन बोर्ड में बदल देंगी, तो ममता बनर्जी अपना साइन बोर्ड बचा के रख लें, यही गनीमत है।